Assalamu alaikum. Dear students, I hope you people are fine and in this crucial and pandemic situation, staying at home, keeping the social distance. This is Hafiz Saad, Pakistan Studies teacher of American Livestock School. Today, we are going to discuss an important topic of grade 9. The topic is Constitution of Pakistan 1956. आईन पाकिस्तान 1956. Okay, students, this topic is on page number 103 on your books in Urdu medium as well as in English medium books. So first of all, we are going to discuss a little bit background of this topic. Pakistan was created or Pakistan came into being in 1947, while the first constitution of Pakistan was implemented in 1956. There is a 9 years delay. Keep this thing in mind. The first constitution of Pakistan was implemented after 9 years. 9 साल के बाद जो आइन बना था, इस इतने बड़े गैप की रीजंस क्या थी? 9 साल तक कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं बन सका? द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज ज्योग्राफी. पाकिस्तान जोग्राफियाई तौर पर दो हिस्सों में तकसीम था, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान, और दोनों पार्ट्स में 1600 किलोमीटर्स का डिस्टेंस था. This was a major setback as far as the constitutional development of Pakistan was considered. Administratively, these two parts were not equal. East Pakistan consisted of one province that was a complete administrative unit. मशरकी पाकिस्तान एक सूबा था, जबकि मगरबी पाकिस्तान में 4 सूबे और 12 रियासतें थीं. There were 4 provinces in West Pakistan as compared to the one in East. On the other hand, population-wise, these two parts were not equal. Majority of population of Pakistan was in the eastern part, that was 56%. While in West Pakistan, where there were 4 provinces, the population was less than East Pakistan, and that was just 44%. 44% population in West Pakistan. The students keep in mind, these things could be asked in MCQs or short questions. Mostly multiple choice question, like the population of Pakistan in eastern part was, that was 56%, and in western part was 44%. So this was a major problem, that both the parts were not equal. There was not any possible solution or outcome to accommodate both the parts equally in the constitution or to give them equal representation. मुमकिन नहीं हो रहा था कि दोनों हिस्सों को आइन में और असेंबली के अंदर बराबरी की बुनियाद पर जगह दी जा सके. So finally, one solution was presented and that was accepted from all over the country. That was one unit. Now, what is one unit? The 4 provinces of West Pakistan were merged on 14th of October 1955, and they were declared as one province as a whole. This merging of administrative units of West Pakistan was known as one unit. मगरबी पाकिस्तान के चारों सूबों को मिलाकर एक सूबा बना दिया गया था और ये वन यूनिट कहलाता. ये वन यूनिट डिक्लेयर किया गया था 14 अक्टूबर 1955 को. And this unification of provinces remained intact till 1970. Again, an important multiple choice question. One unit 14th अक्टूबर 1955 को बना था और 1970 तक रहा था. So after that, constitution making process was much easier.
Second Constituent Assembly of Pakistan under the leadership of Prime Minister Chaudhry Muhammad Ali. ऑन दैट टाइम ये चौधरी मोहम्मद अली पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे. ये नाम हम पहले भी पढ़ चुके हैं लियाकत अली ख़ान वाले टॉपिक में. चौधरी मोहम्मद अली के अंडर असम्बली ने बहुत स्पीडीली अपना काम किया. द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रेजेंटेड इन असम्बली ऑन 9th of January 1956. अगेन दिस पॉइंट कुड बी आस्क्ड एज MCQ. पहले आइन का मुसव्वदा असम्बली में 9 जनवरी 1956 को पेश किया गया था. मुसव्वदा या ड्राफ्ट का मतलब है इनिशियल फॉर्म. जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उसको जिस फॉर्म के अंदर असम्बली में प्रेजेंट किया गया. आफ्टर लॉन्ग डिबेट्स एंड डिस्कशंस फाइनली द कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड फ्रॉम असम्बली. गवर्नर जनरल अप्रूव्ड इट एंड देन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इम्प्लीमेंटेड on 23rd of March 1956. Remember, the draft was presented on 9th of January 1956 while the constitution was implemented on 23rd of March 1956. Again an important MCQ. So now we are going to discuss the salient features of the constitution. आइन के नुमाया खदोखाल क्या थे, क्या क्या पॉइंट्स थे इसके अंदर, किस तरह का स्ट्रक्चर था. फर्स्टली दिस वाज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ रिमेंबर स्टूडेंट्स, इन मॉडर्न वर्ल्ड in almost all the countries the constitution is in written form. There are some exceptions like United Kingdom where the constitution is not in written form. But most of the countries have written constitutions. First constitution of Pakistan was a written constitution, and that constitution consisted of three things mainly: articles, chapters, and schedules. The constitution was divided into 13 chapters. Those 13 chapters consisted of 234 articles. 234 दफात थी इसके अंदर, जो कि 13 अबवाब पर मुश्तमिल था. 234 दफात थी और 6 गोशवारे थे. व्हाट आर आर्टिकल्स? दफात क्या होती हैं? सिंपल वर्ड्स में बेटा हम ये कह सकते हैं पॉइंट्स. इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 234 डिफरेंट पॉइंट्स थे. 234 डिफरेंट लॉज वर देयर. एंड शेड्यूल, जिसको हम उर्दू में गोशवारा कहते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन चूंकि लॉ की लैंग्वेज में बनाया जाता, डिफरेंट लॉ टर्मिनोलॉजीज आर यूज्ड जो कि कॉमन लाइफ में, कॉमन लैंग्वेज में यूज नहीं होती हैं. तो इस तरह की जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं इनको सेपरेटली एक्सप्लेन किया जाता है, और वो सेपरेट एक्सप्लेनेशन एट द एंड ऑफ द बुक और एट द एंड ऑफ द चैप्टर साथ अटैच होती है. दैट इज नोन एज शेड्यूल. सो देयर वर टोटल 6 शेड्यूल्स, 13 chapters and 234 articles. And as we have discussed in our previous lecture, objectives resolution was included in the constitution as preamble. करारदाद मकासद को आइन में इफ्तिताहिया के तौर पर शामिल किया गया था. नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन. उर्दू में हम इसको कहते हैं लचकदार आइन. दिस इज अ टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टूडेंट्स. One of the most important type is flexible constitution. Firstly, what is a flexible constitution? A constitution which is amendable, जो काबिल तरमीम हो, जिसमें तब्दीली की जा सकती हो. मीन्स ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा जो आइन बन गया है वो हार्ड एंड फास्ट रूल है, कुछ भी हो जाए उसको चेंज नहीं कर सकते. बिकॉज सोसाइटीज़ आर
कॉन्टीन्यूसली इवॉल्विंग, सिचुएशंस कॉन्टीन्यूसली चेंज होती हैं, रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमें अपने लॉज भी चेंज करने पड़ते हैं समटाइम्स. सो दिस कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेबल, दैट्स व्हाई it is termed as this constitution was termed as flexible constitution, जिसे हम उर्दू में लचकदार आइन कहते हैं. इसमें तब्दीली कैसे हो सकती थी? ऐसा नहीं था कि हर कोई इसको चेंज कर सकता है या किसी भी वक्त चेंज किया जा सकता है. देयर वाज अ सर्टन लिमिटेशन, एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थी इसको चेंज करने के लिए. और वो रिक्वायरमेंट ये थी कि नेशनल असेंबली के 2/3 मेंबर्स, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ नेशनल असेंबली, वो अगर अप्रूव करें तो फिर इस कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जा सकता है. दैट इज़ अबाउट 66%, 2/3 अक्सरियत दरकार थी इसके लिए. एंड आफ्टर दैट प्रेसिडेंशियल अप्रूवल आल्सो, अगर प्रेसिडेंट उस अमेंडमेंट को, उस चेंज को अप्रूव करेगा तो फिर वो अमेंडमेंट हो जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाएगा, उसके अंदर तब्दीली कर ली जाएगी. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम उर्दू में कहते हैं विफाकी आइन. फेडरल सिस्टम या विफाकी निज़ाम क्या होता है? हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन के अंदर डिटेल में. यहाँ पर सिंपली पॉइंट ये है कि 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया था. द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू 2 प्रोविंसेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटे, याद रखिएगा. 1956 में पाकिस्तान के 2 प्रोविंसेस थे, ईस्ट पाकिस्तान प्रोविंस एंड वेस्ट पाकिस्तान प्रोविंस. द पॉइंट which we have discussed in the background, that all the provinces of West Pakistan were merged. So there were 2 provinces, East Pakistan and West Pakistan, could be asked as multiple choice question. The provinces of Pakistan in 1956 were 2. Further, powers were distributed in 3 major lists. इख्तियारात को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया था. फेडरल लिस्ट या मरकज़ी हुकूमत के इख्तियारात, प्रोविंशियल लिस्ट जिसको हम सूबाई हुकूमत के इख्तियारात कहेंगे, एंड कंकरेंट लिस्ट, मुश्तरका इख्तियारात. फेडरल लिस्ट और फेडरल पावर्स वर दोज डिपार्टमेंट्स और दोज पावर्स जो कि सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल और फेडरल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आते थे. प्रोविंशियल गवर्नमेंट का उसमें कोई रोल नहीं था. सिमिलरली प्रोविंशियल लिस्ट, प्रोविंशियल पावर्स वो चीज़ें थी, वो डिपार्टमेंट्स थे, वो लेजिस्लेशन के प्रोसेसेस थे जो जस्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे. प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स डिफरेंट लॉ मेकिंग, डिफरेंट पॉलिसीज़ बना सकती थी, इम्प्लीमेंट कर सकती थी. सेंट्रल गवर्नमेंट का उन डिपार्टमेंट्स में कोई रोल या कोई इंटरफेरेंस नहीं होती थी. और थर्ड वन है कंकरेंट लिस्ट, मुश्तरका इख्तियारात. वो डिपार्टमेंट्स जिसमें दोनों लेवल की गवर्नमेंट्स, प्रोविंशियल भी और फेडरल भी, अपनी अपनी पॉलिसीज़ प्रेजेंट कर सकती थी, चेंजेस कर सकती थी. दोनों गवर्नमेंट्स का रोल उसके अंदर आता था. ये 3 तरह की पार्ट्स थी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 के अंदर दी गई थी. और प्रोविंसेस वर गिवन इंटरनल ऑटोनॉमी, सूबों को काफ़ी हद तक अंदरूनी खुद मुख्तारी हासिल थी. इस पॉइंट की लास्ट लाइन में ये सेंटेंस आपकी बुक्स के अंदर भी लिखा हुआ है, प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी गई थी. प्रोविंशियल लिस्ट कंप्लीटली प्रोविंसेस के कंट्रोल में थी, फेडरल गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती थी उसमें. नेक्स्ट पॉइंट इज पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन. पार्लियामेंट्री सिस्टम और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन. अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 पार्लियामेंट्री सिस्टम वाज इम्प्लीमेंटेड. ये पार्लिमानी निज़ाम होता क्या? मुल्क के अंदर 2 मेजर डेजिग्नेशंस होते हैं. ये 2 मेजर डेजिग्नेशंस कौन कौन से हैं? बहुत कॉमन है. दोज आर प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर. President is known as head of state
while Prime Minister is known as head of government. Okay, now keep this thing in mind. सरबराह रियासत सदर होता, जबकि वज़ीर आज़म हुकूमत का सरबराह होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, डिफरेंट ईयर्स में बोर्ड के पेपर्स के अंदर ये पूछे जा चुके हैं कि हु इज़ हेड ऑफ स्टेट एंड हु इज़ हेड ऑफ गवर्नमेंट। द टेन्योर ऑफ बोथ द हेड्स इज़ 5 years। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों के ओहदे की मुद्दत 5 साल होती है। ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको भी याद रखिएगा, अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है, ऐसा नहीं है कि जो बंदा एक दफ़ा प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बन गया है उसने 5 साल पूरे ही करने हैं। अंडर सम स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस हेड ऑफ स्टेट एज वेल एज हेड ऑफ गवर्नमेंट कैन बी रिमूव्ड। उसको रिप्लेस किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, उसके लिए स्पेसिफिक क्राइटेरिया है। प्रेसिडेंट कुड बी रिमूव्ड थ्रू अ प्रोसेस नोन एज इम्पीचमेंट, जिसको हम उर्दू में कहते हैं मुवाखजा। सदर का मुवाखजा करके, उसकी इम्पीचमेंट करके उसको रिमूव किया जा सकता है। फॉर दैट प्रोसेस वी रिक्वायर 2/3 मेजोरिटी ऑफ नेशनल असेंबली। अगर 66% मेंबर्स इम्पीचमेंट के हक में हों तो प्रेसिडेंट रिमूव हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एंड फॉर प्राइम मिनिस्टर देयर इज अ सिंपल मेथड नोन एज नो कॉन्फिडेंस, अदम एतमाद। सिंपल मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड फॉर नो कॉन्फिडेंस। दिस इज अ डिफरेंस, याद रखिएगा। फॉर इम्पीचमेंट वी नीड 2/3 मेजोरिटी एंड फॉर नो कॉन्फिडेंस वी नीड सिंपल मेजोरिटी, दैट इज 51%. So this was a system known as parliamentary system implemented under the Constitution of 1956 in Pakistan. Next point is unicameral legislature. Yak Evani Mukannana. Uni means one, cameral means chamber or house. Legislature, जिसको हम उर्दू में मुकन्नना कहते हैं, an institute which makes laws, that is simply known as parliament. तो ऐसी पार्लियामेंट जिसका एक ईवान हो, जिसका एक इदारा हो, उसको या ईवानी मुकन्नना या यूनिकैमरल लेजिस्लेचर कहेंगे। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 56 यूनिकैमरल लेजिस्लेचर वाज ऑप्टेड इन पाकिस्तान। देयर वाज वन हाउस known as National Assembly, and that house consisted of 300 members, 300 members total। MCQ है, इसको याद रखिएगा। As we know that there were two provinces of Pakistan, दोनों provinces को equal representation दी गई थी। 150 members from East Pakistan and 150 members from West Pakistan, and those members जो कि total 300 members थे, इसमें 10 रिजर्व्ड सीट्स इंक्लूडेड थी जो कि फीमेल के लिए रिजर्व थी। उन रिजर्व्ड सीट्स के ऊपर सिर्फ और सिर्फ फीमेल इलेक्ट हो सकती थी, मेल पर्सन्स उसके ऊपर इलेक्ट नहीं हो सकते थे। एंड दोज 10 सीट्स वर अगेन इक्वली डिवाइडेड इनटू टू प्रोविंसेस, 5 फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान एंड 5 फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान। सो इन टोटल देयर वर 300 members in National Assembly, including 10 reserved seats for female. This point is given on page number 105 in your books of Urdu medium, as well as page number 105 of English medium books. Last thing is the tenure of National Assembly. That was 5 years. Now remember, whenever under the Constitution of 1956 जब भी हम टेन्योर की बात करेंगे, that would be 5 years. Either that is the tenure of president or tenure of prime minister or tenure of National Assembly. That is 5 years tenure. Okay, next point, students, is independence of judiciary.
इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हम ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन में भी डिस्कस कर चुके हैं, उसके अंदर भी ये पॉइंट शामिल था। अदलिया की आज़ादी से मुराद क्या है, इसका क्या मतलब है? इन सिंपल वर्ड्स, जुडिशरी विल बी इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस कंप्लीटली। अदालतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, सिक्योरिटी दी जाएगी, उनको जॉब सिक्योरिटी होगी। ये ख़तरा नहीं होगा कि हमें नौकरी से निकाल देंगे अगर कोई स्पेसिफिक डिसीजन हमने दे दिया। उनको लाइफ थ्रेट्स के अगेंस्ट प्रॉपर सिक्योरिटी दी जाएगी। और अब इसके अंदर एक दो पॉइंट्स हैं जो आपकी बुक के अंदर बेटा स्पेसिफिकली मेंशन है, इसको याद रखना है आपने। द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री इज नोन एज सुप्रीम कोर्ट। वेरी मच कॉमन पॉइंट। किसी भी मुल्क की सबसे बड़ी अदालत को सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है और सूबे की सबसे बड़ी अदालत को हाई कोर्ट कहा जाता है। नाउ हियर वंस अगेन नोट इट डाउन, you could be asked this question that in 1956 how many high courts were there in Pakistan. ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है इस पॉइंट में से, चूंकि हम पढ़ चुके हैं कि प्रोविंसेस कितने थे टोटल, 2 प्रोविंसेस, एंड द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अ प्रोविंस इज नोन एज हाई कोर्ट. सो देयर वर 2 हाई कोर्ट्स इन पाकिस्तान इन 1956. जुडिशरी में चीफ जस्टिस जो कि किसी भी कोर्ट का हेड होता है, जो सुप्रीम कोर्ट का हेड होगा दैट वुड बी नोन एज चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो हाई कोर्ट का हेड होगा दैट वुड बी नोन एज चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट. चीफ जस्टिसेस और जजेस की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट किया करता था, उनका तकर्रुर सदर की जिम्मेदारी थी, सदर के हुक्म से या उसके ऑर्डर से उनकी अपॉइंटमेंट्स होती थी. although job security was given कि उनकी जॉब्स प्रॉपरली सिक्योर्ड थी, बट दैट डजंट मीन कि एक बंदा जो कि जज अपॉइंट हो गया है वो फिर थ्रू आउट द लाइफ या रिटायरमेंट एज तक जज ही रहेगा. नो, देयर वाज अ स्पेसिफिक पॉइंट. उनको भी रिमूव किया जा सकता था अगर वो अपने कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट जाते हैं, अगर वो लॉ के अकॉर्डिंगली प्रॉपर डिसीजंस नहीं करते, अगर वो किसी किस्म की करप्शन के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं और उसका प्रॉपर प्रूफ है, तो उसको जज को भी रिमूव किया जा सकता था. और जज को रिमूव करने का सेम क्राइटेरिया था विच वाज द क्राइटेरिया फॉर द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, एंड दैट वाज इम्पीचमेंट. मुआवजा 2/3 मेजॉरिटी ऑफ नेशनल असेंबली अगर उसके अगेंस्ट है या उस डिसीजन को बैक करती है तो उस जज को चेंज किया जा सकता है. नेक्स्ट पॉइंट इज सिंगल सिटीजनशिप. As we know that Pakistan was divided into 2 parts, East Pakistan and West Pakistan. But पाकिस्तान के अंदर ये लॉ बना दिया गया था that every citizen of Pakistan should be called Pakistani. तमाम शहरी पाकिस्तानी कहलाएंगे. No one should be termed as East Pakistani or West Pakistani. ज्योग्राफिकल बेस के ऊपर किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, सबकी सेम और सिंगल सिटीजनशिप होगी. इसके हवाले से एक एग्जाम्पल बेटा बुक के अंदर गिवन है, पेज नंबर 105, पॉइंट नंबर 7, सिंगल सिटीजनशिप वाले पॉइंट में अमेरिका की एग्जाम्पल मेंशन की गई है. इन अमेरिका देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिटीजनशिप्स. 2 तरह की शोहरियत होती है, एक मरकज़ी हुकूमत की और एक रियासती हुकूमत की. अमेरिका के अंदर प्रोविंसेस को स्टेट्स या रियासत कहा जाता है, तो वहाँ पर एक प्रोविंशियल या स्टेट सिटीजनशिप होती है कि ये इस स्टेट का रेजिडेंट है, और एक ओवरऑल सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सिटीजनशिप होती है कि ये अमेरिकन सिटीज़न है. लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं था. चाहे ईस्ट पाकिस्तान का रहने वाला हो या वेस्ट पाकिस्तान का रहने वाला हो, उसके पास एक ही सिटीजनशिप होगी और वो सिटीजनशिप होगी पाकिस्तानी. दिस पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. एज शॉर्ट क्वेश्चन ये पॉइंट कई दफ़ा बोर्ड में पूछा जा चुका हुआ है, व्हाट इज मेंट बाय सिंगल सिटीजनशिप. इसको याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए, अपनी बुक्स के ऊपर भी मार्क कर लीजिएगा इसको.
So next point after this is fundamental rights, बुनियादी हुकूक. Again, this point was discussed in the previous lecture of objectives resolution. Those rights which are given to every person without any kind of discrimination. हर शख्स को जो हुकूक हासिल होते हैं इंसान होने की बुनियाद के ऊपर, और उसमें किसी किस्म का कोई फ़र्क, कोई डिफरेंस नहीं होता. गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये राइट्स प्रोवाइड करना. दीज आर नोन एज फंडामेंटल राइट्स. So in this constitution, this was declared that according to Charter of United Nations, each and every fundamental right will be provided to every citizen of Pakistan. अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक जो बेसिक राइट्स डिफाइंड हैं, अबाउट 48 डिफरेंट पॉइंट्स हैं इन द चार्टर ऑफ यूएन, वो सारे श्योर किया गया था कि गवर्नमेंट हर किसी को प्रोवाइड करेगी. जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसमें से पॉइंट्स हैं, first one is equality, that there would be no discrimination on any base, either religion, race, language, culture, geography. किसी भी बेस के ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी. कोई मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, एजुकेटेड और नॉन एजुकेटेड, अर्बन और रूरल, सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे. सेकेंड पॉइंट इसमें है डिटेंशन, जिसको हम उर्दू में हिरासत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है. It was said that किसी भी शहरी को, किसी भी सिटीज़न को बिला जवाज़ गिरफ्तार नहीं किया जाएगा. बग़ैर किसी ठोस वजह के उसको अरेस्ट या डिटेन नहीं किया जा सकता विदाउट एनी सॉलिड रीज़न. इन केस ऑफ डिटेंशन, अगर डिटेंशन होती है, अगर किसी को गिरफ्तार कर ही लिया जाता है ऑन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस या विद प्रूफ्स, तो इन दैट सेंस, इन दैट केस, उसको अपने आप को डिफेंड करने का पूरा चांस दिया जाएगा. उसको ये हक होगा कि वो अपनी सफाई में कुछ भी पेश कर सके, अपनी सफाई साबित कर सके. और जुडिशल प्रोटेक्शन वाज प्रोवाइडेड फॉर द फंडामेंटल राइट्स. इन हुकूक को अदालती तहफ़्फ़ुज़ हासिल था. मीन्स अगर किसी भी शख्स को उसके फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहे हैं, उनमें कोई रुकावट आ रही है, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन आ रही है, तो वो उसके अगेंस्ट कोर्ट में केस कर सकता है. नेक्स्ट पॉइंट इज लैंग्वेजेस के इन दिस पॉइंट इन योर बुक्स, अगेन ऑन पेज नंबर 105 इन बोथ उर्दू मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम बुक्स, बेटे जो हेडिंग बनी हुई है दैट इज ऑफिशियल लैंग्वेजेस. उर्दू में सरकारी ज़ुबान है. अब उस हेडिंग के अंदर एक छोटी सी मिस्टेक है, तो इसीलिए आप ये देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर सिंपल हेडिंग लिखी है लैंग्वेजेस या ज़ुबानें. वाई? बिकॉज देयर वर टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, नेशनल लैंग्वेज एंड ऑफिशियल लैंग्वेज. ऑफिशियल लैंग्वेज एक सेपरेट टाइप है इसके अंदर, जो कि बुक में मेन हेडिंग के अंदर इंक्लूड किया हुआ है. तो ये बुक के अंदर भी बेटे अपनी करेक्शंस कर लीजिएगा. देयर वर टू नेशनल लैंग्वेजेस, उर्दू एंड बंगाली. दोनों को, उर्दू को और बंगाली ज़ुबान को, कौमी ज़ुबान का दर्जा दे दिया गया था, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान में 56% पॉपुलेशन थी. मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो कि 56% थी वो बंगाली ज़ुबान बोलते थे. इसलिए उर्दू के साथ साथ बंगाली को भी नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था. ये पॉइंट बड़ा इम्पॉर्टेंट है, एमसीक्यू के तौर पर पूछा जाता है, और इसमें अक्सर बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं. जस्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उनको जब नेशनल लैंग्वेज का वर्ड नज़र आता है तो वो फटाफट उर्दू को टिक कर देते हैं. याद रखिएगा, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 56 देयर वर टू नेशनल लैंग्वेजेस, उर्दू एंड बंगाली. ऑन द अदर हैंड, इंग्लिश वाज डिक्लेयर्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज. अंग्रेज़ी को दफ्तरी या सरकारी ज़ुबान करार दिया गया था. द लैंग्वेज यूज्ड इन ऑफिसेस, इन ऑफिशियल वर्क. ऐसी ज़ुबान जो दफातर में सरकारी कामों के लिए, अहकामात के लिए, अदालतों के अंदर इस्तेमाल की जाती है, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है. इंग्लिश वाज डिक्लेयर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर 25 ईयर्स. तो ये बेटा 3 MCQ बनते हैं इस पॉइंट में से.
नेशनल लैंग्वेज कौन सी थी? उर्दू एंड बंगाली। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी थी? इंग्लिश। एंड इंग्लिश वॉज डिक्लेयर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर अ टर्म ऑफ 25 years. Next point, Islamic provisions. Islami Dafat. Almost all the points which we have discussed in objectives resolution, because objectives resolution was included in the constitution as preamble. इफ्तिताहिया के तौर पर आइन में शामिल थी करारदाद मकासद, इसलिए उसके सारे नकात जो हैं वो आइन में शामिल थे, और वही पॉइंट्स वही नकात यहाँ पर भी हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन, द नेम ऑफ द कंट्री वाज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया था. मीन्स दिस वाज डिसाइडेड दैट पाकिस्तान वुड बी एन इस्लामिक कंट्री. कॉन्स्टिट्यूशनली इस्लामिक कंट्री था और इसमें डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट किया गया था. तो ये दोनों चीज़ें नाम के अंदर आ रही हैं, इस्लामी और जमहूरिया. जमहूरी मुल्क होगा. एक कंडीशन इम्प्लीमेंट की गई थी दैट प्रेसिडेंट शुड कंपल्सरीली बी मुस्लिम. अगेन यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके माइंड्स में रेज हो सकता है, वाई प्रेसिडेंट? सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए क्यों थी कंडीशन? प्राइम मिनिस्टर के लिए क्यों नहीं थी? या कंडीशन थी ही क्यों? एज वी हैव डिस्कस्ड दैट प्रेसिडेंट वाज टर्म्ड एज हेड ऑफ स्टेट. मुल्क का, रियासत का सरबराह होता है सदर, और पाकिस्तान को एक इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर किया गया था. सो इट वाज कंपल्सरी कि एक इस्लामिक स्टेट का हेड मुस्लिम ही होगा. एक नॉन मुस्लिम इस्लामिक स्टेट का हेड नहीं हो सकता. That's why this condition was specifically added or mentioned in the constitution. Objectives resolution was the preamble, and according to objectives resolution, it was said that in Pakistan no law would be implemented or promulgated against of the teachings of Quran and Sunnah. कोई भी कुरान और सुन्नत के खिलाफ कानून ना बनाया जाएगा, ना नाफिज होगा, और अवाम को अपनी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक, इस्लामिक वे ऑफ लाइफ के अकॉर्डिंग उनको ज़िंदा रहने का, अपनी ज़िंदगियां गुजारने का मौका मिलेगा. अकॉर्डिंग टू दैट कुछ पॉइंट्स ऐसे थे, जनरल लॉज जो कि इस्लाम में कुरान और सुन्नत के पॉइंट ऑफ व्यू से मौजूद हैं और सोसाइटी में उनको फॉलो किया जाता है या करना लाजमी है. वो पॉइंट्स यहाँ पर आपकी बुक्स के अंदर भी गिवन है इन द लास्ट सेंटेंस, कि मुल्क से सूद, इस्मत फरोशी, शराब नोशी, जुआ, मनशियात वगैरह, इन चीज़ों का ख़ात्मा किया जाएगा. इंटरेस्ट और यूसरी, सेल ऑफ अल्कोहल, नार्कोटिक्स, प्रोस्टिट्यूशन शुड बी बैंड, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं, वो काम हैं जिनको अकॉर्डिंग टू हदीस एंड सुन्ना बैन किया गया है. इस्लाम में इनकी इजाज़त नहीं है, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी शामिल था. ना तो सूद लिया जा सकता है, ना कोई सूद का कारोबार किया जा सकता है. नशा, शराब वगैरह ये चीज़ें, इन पर पाबंदी है, ये हराम है इस्लाम के अंदर. प्रोस्टिट्यूशन या जिना, फोर्स्ड फिजिकल रिलेशंस विदाउट मैरिज, आइदर फोर्स्ड और विद कंसेंट, उसको हम प्रोस्टिट्यूशन कहते हैं, विदाउट मैरिज. This point, Islamic provisions of the Constitution of 1956. This point again is a short question. एक्सरसाइज में भी गिवन है बेटे, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा. नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस. An institution which is discussed, described in constitution is known as a constitutional institution. ऐसा इदारा जो आइन में मौजूद हो, जिसका नाम, जिसका स्ट्रक्चर, जिसकी फंक्शनिंग, ईच एंड एवरी डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन हो, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन या आइनी इदारा कहते हैं. Under the Constitution of 1956, 4 major constitutions were designed. उनके नाम बुक में भी गिवन है, सामने आपको अपनी स्क्रीन पर भी नज़र आ रहे हैं. इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, इदारा तहकीकात इस्लामी,
Public Service Commission, Election Commission, and Auditor General. Okay, the second last, Election Commission. In your books on page number 106, point number 11, इसमें बेटा लिखा हुआ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर. दिस इज अ मिस्टेक. इंस्टीट्यूशन का नाम था इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के हेड का डेजिग्नेशन होता था, उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहा जाता था. ये याद रखिएगा, ये चारों नाम आपने याद रखने हैं. ये एज शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. इनके फंक्शंस क्या थे वो बुक के अंदर गिवन नहीं है डिटेल्स. उसके अंदर अगर हम जाएंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी चला जाएगा और आपके सिलेबस से वो इतना रेलेवेंट भी नहीं है, इसलिए मैं उसको स्किप कर रहा हूँ. Next and last point is abrogation of the constitution. Abrogation या मनसूखी का मतलब होता है ख़त्म कर देना या ख़त्म हो जाना किसी चीज़ का. The Constitution of 1956 was passed after a long and untiring wait of 9 years. 9 साल के बाद ये आइन मंजूर हुआ था. But it remained implemented for only 2 years and 7 months. सिर्फ 2 साल और 7 माह तक ये नाफिज रहा, उसके बाद इसको मनसूख कर दिया गया. इस कॉन्स्टिट्यूशन को, इस आइन को मनसूख किया था, एब्रोगेट किया था द फर्स्ट मुस्लिम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान, अयूब खान. पहला मुसलमान आर्मी चीफ अयूब खान था पाकिस्तान का, उसने इसको मनसूख किया था. एंड दैट कॉन्स्टिट्यूशन वाज एब्रोगेटेड ऑन 27th of October 1958. आपकी बुक में बेटा जस्ट मंथ और ईयर मेंशन है, दैट्स वाई मैंने भी स्लाइड पर सिर्फ ईयर और मंथ ही मेंशन किया. एग्जैक्ट डेट वाज 27th of October. Now why this constitution was abrogated? There were different reasons, different causes. First one is differences of politicians. सियासतदानों की बाहमी चपकलश, आपस की लड़ाइयाँ, इख्तियारात की जंग, उसकी वजह से सिस्टम बार बार डिस्टर्ब हो रहा था. सियासतदानों की बाहमी चपकलश और आपस की लड़ाइयों, इख्तियारात की जंग के अलावा दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट था फौज और ब्यूरोक्रेसी की मुदाखलत. इंटरप्शन ऑफ आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी इन गवर्नमेंटल अफेयर्स. क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन 9 साल के बाद बना था, 9 साल तक कोई कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर नहीं था, इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था. इस वजह से डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स अपनी लिमिटेशंस, अपनी पावर्स, इन चीज़ों को आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द बॉक्स यूज़ कर रहे थे. और वही प्रैक्टिस कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट होने के बाद भी चलती रही, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आए. देयर वाज अ लैक ऑफ लीडरशिप. क़यादत का फुकदान था. आफ्टर द डेथ्स ऑफ अर्ली लीडर्स लाइक कायद आज़म, लियाकत अली ख़ान, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, इनके बाद कोई ऐसा लीडर मौजूद नहीं था मुल्क के अंदर जो कि पूरी नेशन को यूनाइट रख सकता या पूरी नेशन जिसको फॉलो करती. दिस वाज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम ऑन दैट टाइम. एंड हाई हैंडेडनेस ऑफ गवर्नर जनरल की मनमानियाँ, हुकूमती मामलात में बेजा मदाखलत, उसकी वजह से भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी. कॉन्स्टिट्यूशन आल्दो बना हुआ था, इम्प्लीमेंटेड था फॉर अबाउट 2.5 years, लेकिन सिस्टम स्टेट का, मुल्क का निज़ाम जो है वो स्मूथली नहीं चल रहा था. तो इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से on 27th of October 1958, the Chief of Army Staff Ayub Khan imposed martial law in the country. He abrogated the constitution, all the assemblies were dismissed, and he became the President of Pakistan as well as Chief Martial Law Administrator of Pakistan. This point is again a short question given in exercise, abrogation of Constitution of 1956. इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा. और बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है एज शॉर्ट क्वेश्चन, इसको आपने अच्छी तरह से याद करना है. दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक.
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 के मेन पॉइंट्स ये थे जो हमने डिस्कस किए। आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। एट द एंड I would like to say thank you to everyone. Stay home, stay safe, keep social distance, focus on your studies, and go to the YouTube channel of American Life Stuff and like this lecture, like this video. इसको मैक्सिमम लाइक करें ताकि और भी स्टूडेंट्स जो कि आपकी क्लास में हैं वो इसको देख सकें और सबके लिए ये हेल्पफुल हो। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। स्टे होम एंड स्टे सेफ।